Hey guys, welcome to Astra Tarot. My name is Yachna. I'm a psychic tarot reader and I'm also a trauma informed life coach. And I hope you guys are doing good. And मेरे मन में बहुत सारी confusion चल रही है इनफैक्ट कुछ दिनों से. I'm not sure if I'm the only one who's experiencing or are you also experiencing something like that. Do let me know in the comments. आज की रीडिंग आई वांट टू डेडिकेट ऑन someone you were in close contact with but abhi aap no contact mein ho. You are not in contact with this person. This could be short term separation or this could be just that maybe you have finally decided to walk away from this confusing relationship or situationship, whatever it was. But I just want to tap into their energy that वो आपके बारे में भी क्या सोच रहे हैं. The one who is in no contact with you or could have ghosted you, maybe. I don't know. Take whatever resonates with you. So, what is this person who is in no contact or separation with you thinking about you right now? Okay, दो cards आए मेरे पास. Ten of Wands, Five of Pentacles, Six of Cups, Nine of Swords, the Empress. Okay, good. Queen of Swords. Okay, and in the bottom of the deck, I've got Three of Wands. Hmm. आई सी दैट ये जो भी इंसान है इसने आपको बहुत ही ऐसी एनर्जी में रखा था बहुत टाइम तक. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, इफ यू कैन सी नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. आपने बहुत सारी रातें गुजारी हैं रो के. स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी, या इंतज़ार में कि वेन एवर दे विल गेट फ्री दे विल कॉल यू मे बी इन द नाइट आफ्टर गेटिंग फ्री. और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, इमोशनल स्टेट या मेंटल स्टेट. सो मुझे लगता है कि दे आर sitting in this Five of Pentacle phase right now and thinking about कि कैसे इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक आपको एक कंफ्यूज स्टेट में रखा. एक मतलब वो होता है ना कि आया आपकी इमोशंस को ट्रिगर किया. दे माइट हैव ऑल्सो लाइक वांटेड कि आप उनके साथ इमोशनली बाउंड रहो and you keep on pouring into this person, but that was just giving you like heartbreak one after the other. हर बार शायद जब आप इससे मिलते थे तो आपको लगता था कि शायद इस मीटिंग के बाद things will change or they will realize your value and they will start treating you better, but it didn't happen. It was like a continuous repetitive betrayal and sadness that this person brought into your life. Or अब tables have turned and this person is sitting in this Five of Pentacles where they are actually ruminating and thinking. मतलब आपसे अलग होने के बाद ये सोच रहे हैं कि they are realizing and they might be reflecting also that इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ and they might have locked you in some fantasy, in some illusion कि शायद आप लोगों के फ्यूचर है या फ्यूचर में they will create something for you, for both of you. They are going to plan something for both of you or go for a trip और इकट्ठे मूवी देखना, कहीं जाना. मतलब इन्होंने बहुत ऐसे सपने दिखाए, उस illusion cloud में आपको लॉक रखा. But right now they are sitting in this energy and thinking that शायद उन्होंने सोचा कि उन्होंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है but finally you might have blocked bolted the door or access to you from inside and now they cannot reach you. So they're sitting in this um,
in coldness, in like इनकी लाइफ में मतलब कुछ ऐसा वार्मथ नहीं है, कुछ ऐसे नर्चरिंग इंसान नहीं है जैसे आप थे. सो ये एक डिसअपॉइंटमेंट और एक मतलब हताश वाली एनर्जी में बैठे हैं. एंड सिक्स ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स दैट दिस पर्सन माइट हैव some childhood trauma, which I feel that they might have been through a lot of like trauma in their childhood. मतलब हो सकता है इनका रिलेशनशिप इनकी मदर के साथ या इनके पेरेंट के साथ अच्छा नहीं है. So they might be an avoidant also, somebody who जिसको intimacy से या closeness से डर लगता है. इसलिए शायद ये इमोशनली अनअवेलेबल थे, बट दे आर जस्ट सिटिंग एंड रूमिनेटिंग कि जब आप इनके साथ थे तो आप ना इनकी लाइफ में एक इमोशनल कनेक्शन लेके आते थे. इमोशंस फील करना आपने सिखाया इस इंसान को, जो खुद इमोशनली शट ऑफ था बहुत टाइम से. सो दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम्स एंड द इमोशनल सपोर्ट. द वो होता है ना कि आप बहुत कुछ तो शायद नहीं करते थे इस इंसान के लिए, बट आपका होना ही ना इस इंसान के लिए बहुत इमोशनली सेटिस्फाइंग और हीलिंग था. सो नाउ दे जस्ट सिटिंग इन दिस एंड ruminating about the past times that they've spent. एंड टेन ऑफ वॉन्ट सेज दैट जैसे बहुत टाइम से, जैसे मैंने बोला कि इस इंसान ने आपको इस एनर्जी नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स वाले में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को कोसना है, अपने आप में कमियां निकालना कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट दिस पर्सन इज़ नॉट प्रायोरिटाइजिंग यू और इज़ नॉट वैल्यूइंग यू, इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू. और मतलब एक कन्वीनियंट टाइप का पर्सन बना दिया था इसने, जैसे वो होता है ना कि जब फ्री होंगे तो बात कर लेंगे टाइप्स. But then you have actually walked away. Ten of Wands here, you have packed your bags and locked this person in their own jail, in their own mental prison. जहाँ पे वो सोच रहे थे कि शायद उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपने उनको ब्लॉक करके यू हैव मूव्ड ऑन. यू टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स यू हैव जो आपके आंखों पे पट्टी थी ना, जो ब्लाइंड साइड था, दैट यू रिमूव्ड एंड यू हैव पैक्ड योर बैग्स एंड मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप वंस एंड फॉर ऑल. आई गेस ये आपका लास्ट जो इनकी इंटरेक्शन रही होगी आपके साथ, उसके बारे में सोच के बैठ के अब सोच रहे हैं कि कैसा था एंड हाउ नर्चरिंग यू वर, हाउ लविंग यू वर एंड हाउ अकोमोडेटिंग यू वर. मतलब आपने शायद इस इंसान को बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल भी फील नहीं करवाया कभी. मतलब यू वर ओके एंड यू मतलब कोई आया, उसने कोई मतलब एक्सक्यूज़ दिया कि they were busy with their work, they were their clients, with their job, with their family, but you never asked many questions. You were just, वो कहते हैं ना कि जहर पी रहे थे आप धीरे धीरे. अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने पहले नहीं, मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज किया बिकॉज ऑफ द लव दैट यू हैड फॉर दिस पर्सन, द लव दैट यू वर पोरिंग इनटू दिस पर्सन. सो एंड फाइनली जब से आपने इनको गुड बाय बोला है, सो ये अपने ही एक रिफ्लेक्शन मोड में चले गए हैं, where they now, I don't know if they, three of wands is there. So हो सकता है कि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि देख रहे हो कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो लाइक विद लॉट ऑफ पैशन एंड यू हैव six of pentacles. You are, they are saying that you have moved on, you have moved on very quickly. शायद इस इंसान ने सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी quickly move on हो जाओगे, but they are seeing you walking away from them. They can feel that energetically you are no more connected with that person that much and you're not like अपनी रातें काला uh, so this person might be having very tough time expressing अपनी दिल की बातें किसी को, इसलिए आई एम ब्लैबरिंग. बट दे आर सीइंग यू राइट नाउ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो अब. मतलब यू हैव आइडेंटिफाइड ऑल द गेम्स एंड ट्रिक्स दैट, और जो भी कंफ्यूजन या क्योस आपकी ज़िंदगी में लेके आ रहे थे, एंड यू आर लाइक सेटिंग न्यू फाउंडेशन फॉर यू. यू आर opening up, you're healing and you are attracting new person in your life, new relationship, new love. ठीक है. और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स सेज दैट नाउ यू आर अवेयर दैट अब आपको ना कोई इम्बैलेंस रिलेशनशिप या skewed relationship नहीं चाहिए. Now you are looking for somebody who can pour back into you. Like you want to be into that equal give and take, equal respect, equally respectful, equally giving kind of partner, and they see that you are manifesting that for yourself. Okay. एंड आपको ये कैसे दिख रहे हैं? The Empress.
they are really seeing you that you are creating a new life for yourself. You are doing all those things जो शायद आपने इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप करोगे. And they also see that you are not chasing, because Empress is like the ultimate. They are seeing you कि वो तो मतलब आपके जैसा तो कोई उनको मिल ही नहीं सकता. But they're just repenting right now, and they're in distress that आपके जैसे इंसान को इसमें खोया है. जो मतलब एम्प्रेस है ना, इज दैट एनर्जी वेयर यू आर like you don't chase, you are very balanced emotionally. You can take care of so many things, you can create, nurture things. मतलब आप अपने लिए अपनी पूरी एक फैंटेसी वर्ल्ड सिर्फ ड्रीम नहीं करते, आप बनाते हो अपने लिए. So that is what they are saying, that you have moved up, like you have leveled up so much to being an empress, sorry. And queen of swords, they also see that अब अगर वो दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, they know that you are not going to allow access to them back in your life. हो सकता है कि पहले बहुत बारी आपने इनको मौका दिया हो कि whenever they have ghosted you, और मतलब इतने हफ्तों के लिए गायब हो गए फिर आ गए, and as if nothing happened, so you might have allowed them back into your life, teaching them that it's okay to treat you like this. But now you've healed, you've moved on, you've put a like stop to this relationship, and you might have quit it. मतलब तब आपने, हो सकता है आपने इसको ब्लॉक करा हो इस इंसान को, या इसको बोला हो कि बस अब आपको आगे नहीं बढ़ना. So they're missing that empress energy, and they're also seeing that now you are not going to tolerate any bullshit. और अगर ये कोई एक कहानी लेके, सॉफ्ट स्टोरी लेके या विक्टिम माइंडसेट से आएंगे, तो you are not going to allow back in your life. You are done with this person. That is what they are seeing, and they are recognizing. So of course इन्होंने बहुत खोया. एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको अभी भी, मुझे लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कहीं ना कहीं आपको अभी भी ना थ्रू कॉमन फ्रेंड्स, थ्री ऑफ कप्स, कॉमन फ्रेंड्स, या हो सकता है आपके कोई बीच में कोई नोन हो, या आपके कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, वहाँ पे दे आर ट्राइंग टू फाइंड मोर अबाउट यू. और वो जितना आपके बारे में जानते हैं ना, दे जस्ट सी दैट यू आर लाइक, सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इतनी कंटेंटमेंट और इतना ग्लो कर रहे हो आप जहाँ पे भी ये देख रहे हैं आपको, और अपनी ही लाइफ में इतना खुश और मतलब कंटेंट हो कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, जो शायद पहले थी. सो दे आर लाइक जस्ट वॉचिंग यू फ्रॉम अफार, glowing, getting better, and creating new things for you. अट्रैक्टिंग अ पर्सन. हो सकता है ये भी सोचते हो कि आप इतना ग्लो कर रहे हो दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट अ पार्टनर जो आपकी कदर करेगा. बिकॉज कहीं ना इस इंसान को मुझे लगता है कि ये पहले से पता था कि you, the moment you are going to open yourself back to the world, you are going to, there are so many like admirers for you. मतलब आप ऐसे हो ना कि आप एक मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक कैच हो. So the moment you would open yourself back to dating world or meeting new people, people are going to come and like woo you or pursue you or admire you. So they're just like in regret right now that they've missed the biggest or the best thing that they had in their lives right now. ठीक है. अब मैं एक गाइडेंस यूनिवर्स से निकालना चाहती हूँ फॉर यू, स्पेशली हु हैव like pushed this person out, or just to see that if at all this person is going to reach to you, try and reconnect with you. देख लेते हैं if they are thinking, or if they want to, are they going to reach back or try to connect with you. देख लेते हैं. So is this person going to reach back to my viewer? Okay, Six of Swords in reverse. Okay, so Six of Swords in reverse is, I would say, they might. So Six of Swords upright is somebody who is like packing the bags and going away. But Six of Swords in reverse means ये अपने दिमाग में तो ना टैक्टिक्स बना रहे हैं कि कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए, कैसे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जाए कि वो वापस आपको कहीं टकरा जाए. मतलब आपको ऐसा ना लगे कि दे आर रीचिंग यू,
बट दे वांट और दे आर मैनिफेस्टिंग ए सिचुएशन कि शायद आप कहीं इनको ऐसे किसी कैफे में या कोई ऐसी जगह जहाँ दे नो दैट यू आर एट योर वर्क प्लेस, और कहीं आप किसी पर्टिकुलर कैफे में जाते थे या वॉक करने जाते थे, तो दे आर मैनिफेस्टिंग कि शायद आप मतलब चाहते तो ये यही हैं कि कुछ ऐसा करें कि आपको अचानक से मिल जाए, एंड दैट वुड लाइक हाइड दैट दे वांट टू रिकनेक्ट विद यू। ठीक है, एंड टू ऑफ कप्स, ओके, सो दे आर थिंकिंग दैट एक बारी तो वो रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे, बट अगेन लाइक आई सेड, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट वेरी एविडेंट कि अच्छा दे हैव रीच्ड बैक, बिकॉज दिस पर्सन माइट बी अ वेरी वेरी इगोइस्टिक एंड सेल्फ सेंट्रिक, फुल ऑफ प्राइड काइंड ऑफ पर्सन। सो लेके तो आना चाहते हैं आपकी तरफ एक नया ऑफर, एक रिकन्सिलिएशन, बट स्नीकी वे से, मतलब डायरेक्टली आके या फोन कॉल नहीं करेंगे। दे आर जस्ट थिंकिंग दैट मे बी दे विल स्टार्ट विजिटिंग टू द प्लेसेस जहाँ आप जाते हो आपके काम का, या और शायद आप टकरा जाओ, and then they are going to reconnect with you as if nothing happened. I think their old patterns, nothing has changed with this person, Ace of Cups. So they might give you like maybe another love bombing offer या emotional कुछ बोल सकते हैं, कुछ सॉप स्टोरी बना सकते हैं, बट या इन देयर माइंड दे वांट टू रीच बैक टू यू, एंड दे आर मेकिंग प्लान्स एंड मैनिफेस्टिंग कि कहीं आप इनको अचानक से मिल जाओ तो दे विल ट्राई एंड रिकनेक्ट विद यू। ओके, तो ये तो है आज की रीडिंग गाइज। अगेन लाइक आई सेड, कीप व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड इस रीडिंग को क्लोज करने से पहले मैं एक यूनिवर्स से गाइडेंस, एक रिमाइंडर निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज आई वुड से कि अगर आप इस एम्प्रेस एनर्जी में हो, यू डू नॉट डिजर्व दिस पर्सन हु इज़ वेरी ऑन एंड ऑफ, एंड somebody who has put you in this energy of nine of swords again and again, अगर उन्होंने अपने पे कोई काम नहीं किया एंड दे हैव नॉट लाइक हील्ड देयर चाइल्डहुड traumas or patterns or avoidant attachment style, then it could be repeating another same cycle of trusting and then getting betrayed. So देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या रिमाइंड कराना चाहते हैं आपको अपने बारे में, बिकॉज यू नो लव इज अबाउट मोर अबाउट, love relationship are just a reflection of what your relationship is with yourself. So अपने साथ रिलेशन, अपने साथ सेल्फ लव, सेल्फ केयर, वो प्यार, उस वो बहुत ज़रूरी है, मतलब to have a strong base and have your own standards. Will you accept this person who was breadcrumbing you or was like off and on with you, जिसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है? सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या रिमाइंड कराना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन के, इफ दिस पर्सन रीचेस बैक और ट्राइज टू कनेक्ट विद यू, सो व्हाट कुड गाइड यू? I'm strong, I'm capable and resourceful. See, so this is like a lion energy, lion's back. सो मुझे ऐसे लगता है कि आपने ना इस इंसान को बहुत चांसेस दिए, एंड देन ओनली यू हैव लेफ्ट देम बिहाइंड। इट्स नॉट दैट एक बारी दो बारी, बट बहुत रेपिटेटिव बिट्रेयल्स या इग्नोरेंस या घोस्टिंग ऑन ऑफ, डिसरिस्पेक्ट, रेपिटेटिव डिसरिस्पेक्ट या मॉकिंग, यू नो, बुलिंग। तो उस एंड तभी आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से बाय बाय किया है। सो द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग दैट यू आर अ लाइनस, like Empress energy. You are a lioness, and it always remember the strength it took for you, the courage it took for you to shut off this person and like let go of this person once and for all. हो सकता है आप ट्रॉमा बॉन्ड में हो इस इंसान में, तो यू अंडरस्टैंड कि इस पर्सन को जाने देने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है। यू माइट हैव हील्ड योर सेल्फ, गॉन इन टू वर्कशॉप्स और थेरेपी लिया हो सकता है, कुछ भी आपने बहुत मेहनत करी है, मतलब टू रीबिल्ड योर सेल्फ वर्थ एंड आइडेंटिफाई कि आप रियली हो, मतलब हो कौन। अगर आप इम्प्रेस हो तो ये ऐसा कोई पेज टाइप का इंसान आपके साथ आके, मतलब दे कांट ट्रीट यू, डिसरिस्पेक्ट यू और जस्ट कीप यू इन द लिंगरिंग lingering phase forever. So do not forget that the work and inner work and the healing that took for you to make this decision to push this person out of your life once and for all. So be strong, बी केपेबल। आप ये देखो कि आप इस पे डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब यू डोंट नीड दिस पर्सन एंड यू हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट यू नीड टू क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट। इस पर्सन पे दोबारा को डिपेंडेंट होने की गलती मत करना। दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज सेइंग, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूँ कि क्योंकि शायद ये ना आपको ऐसे मैनिपुलेट करते थे कि
ऐसा फील कराते होंगे कि आपको इनकी ज़रूरत है, बट इट हैज़ ऑलवेज बीन द अदर वे अराउंड बिकॉज दिस पर्सन वाज इमोशनली अनअवेलेबल, सो all the emotional supply you were giving to this person. So now when they reach back, जैसे ये कार्ड नीचे गिर गया, तो उनको गिरे रहने दो अपनी जगह, उनको दोबारा अपनी लाइफ में एंट्री मत दो, बिकॉज यू आर अ लाइनस एंड यू आर टर्निंग योर बैक. सी, तो अगर वो आए तो अपनी पूंछ दिखा देना उनको. And let them go once and for all. No hard feelings, but somebody who cannot really respect you, recognize your worth, और आप जो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी उनमें डाल रहे थे, अगर किसी को उसकी कदर नहीं है, and they were taking you for granted, the best is to show your back and your tail. You don't even have time to look at them. ठीक है, thank you universe. Okay guys, so I will wrap this reading here. आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये इंसान है कौन. एंड आई वुड से कीप मूविंग अहेड इन योर लाइफ. ऐसे लोग जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, इनके साथ आप एसोसिएट करके, इनके अंदर इमोशनल एनर्जी पोर करके, like you're just going to get disappointed. So just be in this empress energy. Remember that you're an empress always, and a lioness. Okay, so beautiful cards, beautiful reading, guys. I hope you want to hear or such readings again. And if you like my style, do subscribe to my channel and take care of yourself. Keep loving yourself. Bye bye.